Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are doing good. Today we'll learn science. Today is Tuesday, 27th April 2021. Today we'll learn about safety precautions when using electricity. But before moving to our new topic, first we will recall our previous topic, electricity. Do you remember what is electricity? In previous lesson, we have discussed about electricity. Electricity is a form of energy. Electricity gives energy to different things so they can work. जिस तरह से हमें फूड एनर्जी देता है कि हम अपने काम कर सकें, इसी तरह से electricity gives energy to different things so they can work. What is electricity? It is a form of energy. Okay? When you look at your surrounding, you find different things that use electricity. For example, washing machine, television, refrigerator, computer, microwave. These all things need electricity to work. Students, now you have learned that electricity is a form of energy and all the electrical equipments need electricity to work. Now, we have one question. From where do we get electricity? We get electricity from different sources. For example, sun, wind, water, and nuclear energy. These are the sources of electricity. These are the main sources of electricity. It is a nuclear power plant. Nuclear energy is a powerful energy which is used to create electricity. हम nuclear energy को use करते हैं electricity को बनाने के लिए. Number second is hydroelectricity. Hydro means water. Hydro means water. We use water to make electricity. Mostly हम डैम्स में पानी को डैम से पानी स्टोर होता है, रिजर्वॉयर बने होते हैं, वहाँ हम वाटर की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं. ठीक. It is solar power. सोलर मीन्स सन. सोलर पैनल्स आपने देखे होंगे. इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, वी डायरेक्टली कैप्चर्ड या ट्रैप द सनलाइट. हम सनलाइट को ट्रैप करते हैं इन पैनल्स में. ठीक है. सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी गिवन ऑफ बाय सन रेज. ठीक. हम सन रेज को ट्रैप करते हैं इन पैनल्स में and use it to make electricity. It is called wind turbine. It is wind turbine. It uses wind to make electricity. When we make electricity through these sources, then it is sent to our home through wires and poles. ठीक. जब इलेक्ट्रिसिटी बना ली जाती है तो वो हमारे घरों में वायर्स के ज़रिए भेजी जाती है. Now the question is, how do we use electricity? हम किस तरह से यूज़ करते हैं? आपको मालूम है हमारे घरों में ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस मौजूद होते हैं. ठीक. उनके ज़रिए से हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं. या आपने यू हैव सीन इट बिफोर. इट इज़ कॉल्ड प्लग. दीज आर सॉकेट्स एंड दीज आर स्विचेस. आप सब लोग इससे फेमिलियर होंगे. आपने अपने घर में प्लग्स भी देखे होंगे, सॉकेट्स भी देखे होंगे एंड स्विचेस भी देखे होंगे. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, व्हेन वी टर्न ऑन द स्विच, द फ्लो ऑफ एनर्जी स्टार्ट्स एंड आवर इक्विपमेंट, इट कुड बी लाइट, बल्ब, फैन, एनीथिंग, इट विल टर्न ऑन. ठीक है. जब हमने स्विच को ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट हुआ और हमारे जो बल्ब है वो ऑन हो गया. इसी तरह से जब हम
स्विच को ऑफ कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक जाएगा, एनर्जी रुक जाएगी, बल्ब तक जाना वो वहाँ तक ट्रांसमिट नहीं होगी, तो क्या होगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। ठीक, सॉकेट्स में हम क्या करते हैं, प्लग को इंसर्ट करते हैं। व्हेन वी इंसर्ट द प्लग इनटू द सॉकेट देन क्या होता है, आप देखिए एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो गया और हमारे पास जैसे मोबाइल चार्ज दिखाया जा रहा है तो वो मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी मेक्स अवर लाइफ ईजियर। We use electricity everywhere in our homes, offices, schools, banks, hospitals, everywhere. So we must use it carefully. If we don't use it carefully, then what will happen? If we don't use it carefully, then there will be power breakdown and our life will become miserable. It will be difficult for us to live without electricity. We must use electricity wisely. We shouldn't waste electricity. We should turn the things off when we are leaving home and when we are not using it. ठीक, when you leave the room, switch off the lights, bulbs and anything. ठीक, and when you are not watching TV, then switch it off. इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। ओके, इन अ सेम वे वी मस्ट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी सेफली। हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेफली यूज़ करना चाहिए। देयर आर सम सेफ्टी टिप्स फॉर किड्स। फर्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेफ्टी? व्हाट इज़ सेफ्टी? सेफ्टी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डेंजर और हार्म। जब आप अपने आप को किसी भी नुकसान से या किसी भी ख़तरे से बचाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेफ्टी। द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ, महफूज होना। ठीक है, इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ किड इज प्लेइंग विद सॉकेट्स एंड प्लग्स। आप जानते हैं इट इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज इट कैन कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन मीन्स इससे आपको बिजली का एक बहुत ज़ोरदार झटका लग सकता है जो कि फैटल भी हो सकता है। मीन्स आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। ठीक, सो नेवर प्ले विद प्लग्स एंड सॉकेट्स। ठीक, नंबर सेकेंड, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स। अगर आपके हाथ गीले हैं तो स्विच को सॉकेट को हाथ ना लगाइए। ठीक है, इससे भी आपको इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, आपको करंट लग सकता है। जब आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को गीले हाथों से या बेयरफुट मीन्स विदाउट आपने स्लीपर्स उसको हाथ लगाया तो क्या होगा, आपको बहुत ज़ोर से करंट लगेगा। ठीक है, सो प्लीज़ बी सेफ एंड डोंट डू दिस। Look, what is he doing? He is putting his finger into the sockets. आप जानते हैं क्या होगा अगर ये ऐसा करेगा तो? He'll get electric shock. What will happen? He'll get electric shock. So never put your finger in sockets because it is very dangerous. समटाइम्स आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट या फोर्क या समटाइम्स हेयर पिन्स भी जो होती हैं वो सॉकेट के अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा करंट लग सकता है और आपकी लाइफ ख़तरे में आ सकती है। सो डू नॉट पुट एनी मेटल ऑब्जेक्ट इन सॉकेट। ठीक, लुक एट दिस। हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी pull the cord. Actually we always pull the cord instead of plug. So जब भी हमें प्लग को बाहर निकालना हो तो do not pull the cord, always pull the plug. ठीक है, never touch anything with bare hand. ठीक, अगर आपको वायर कोई भी दिखाई दे रही है तो आप उसको बिल्कुल भी टच नहीं कीजिए।
क्यों? क्योंकि उससे आपको करंट लग सकता है। ठीक है, लुक एट दिस ब्लू कवरिंग। ये जो ब्लू कवरिंग होती है ये प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है, और ये सेफ्टी कवरिंग होती है जिससे हमें करंट नहीं लगता। अगर आपको कभी दिखाई दे कि ये ब्रेक हो गई है तो डू नॉट टच द वायर। ठीक, आप उस वायर को हाथ बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि उससे आपको करंट लग सकता है। ठीक, एंड वन मोर थिंग, बी केयरफुल नॉट टू ट्रिप ओवर वायर्स। अगर ज़मीन के ऊपर कहीं वायर्स हैं तो आप वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे, उसके ऊपर कोई छलांग नहीं लगाएंगे, बल्कि वहाँ से साइड से गुजर जाएंगे। ठीक है, ओके। अगर आपने कोई भी काम करना है, ठीक, इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग, आस्क योर पेरेंट्स, आस्क योर एल्डर्स फॉर योर हेल्प। ठीक, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो आस्क योर पेरेंट्स, डोंट डू इट बाय योरसेल्फ। एंड वन मोर थिंग इज स्टे अवे फ्रॉम द पोल्स। आप जितने भी ये इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं इनसे बिल्कुल दूर रहेंगे। और कुछ बच्चे जो हैं काइट उड़ाते हैं पोल्स के पास जा जाकर, या अगर पोल में उनकी काइट स्टक हो जाए तो वो उसको खींच रहे होते हैं। नेवर डू दिस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और आप पोल के करीब भी नहीं जाए, खुसूसी तौर पर रेनी सीज़न में। जब रेनी सीज़न हो, जब बारिशों का मौसम होता है तो हमें इलेक्ट्रिक पोल से दूर रहना चाहिए। आई होप यू विल रिमेंबर द सेफ्टी रूल्स एंड टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स। ओके, नाउ देयर इज़ योर होमवर्क। You will write date 27/4, topic electricity, question number 1, safety rules. You will write date on top of the page. You will write topic electricity. Question: write any 2 safety rules while using electricity. Number 1, never play with plugs and sockets. Number 2, do not touch the wires. I hope you enjoy the video. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.